Hello students, welcome to the online classes of Resonance. I'm Saloni Sadda, your faculty of English from Resonance. So today we are going to study a new topic, reading comprehension. So it is a very basic topic. You have been studying this topic in your previous classes also. So I think nothing technical in that, something very easy for you people. Only new thing that I would like to teach you today is reading comprehension can also come in form of poetry. Okay, till date you have been reading comprehensions in passage form, right? आपको एक paragraph दे दिया जाता है and then you have to answer certain questions based on that paragraph. But today that what I'm going to teach you is when your comprehension means when any poem is given, it is an unseen poem I'm talking about. You can say unseen, unseen poem or passage. So you all know how to solve an unseen passage. Okay, you'll read the passage carefully. I'll give you some instructions how to do this. Okay, first of all, set the time limit. 10 minutes are enough. Okay, in that you can give a reading of the passage. Okay, now one idea I want to give you how you can do it quickly. Okay, when you are solving an unseen passage or any piece of poetry, then you do one thing. First, go through all the questions given below. Okay, whatever passage is given, below that some questions are given. So, first read those questions. Why I'm saying so? Because you will get an idea that what you have to answer after reading that entire passage or piece of poetry. So, read the questions first and then start reading your passage. It will help you to save time. Okay, so I'll take one example of your module. Uh, let's take an example of a piece of poetry given in the module of class 8th. Okay, so class 7 students, they can also understand it very easily because the poem is very easy one. So class 8 students, this is for you. On page number 125, a very short piece of poetry is given over there. The Friendly Cow. Okay, class 7 students can also understand it. It is very easy, nothing new for them. You have done it in class 6th, you have done it in class 5th. Okay. So I'm reading a poem before you. First of all, what I'm doing is going through the questions. Choose the most appropriate option out of the following. It is given on page number 126, class 8th module. Choose the most appropriate option out of the following. The question is, who is she referred to in the poem? जो सबसे पहला क्वेश्चन है, she किसके लिए यूज हुआ है पोएम में? ठीक है, ये हमें जब हम पोएम को पढ़ेंगे तब हम पता कर लेंगे. सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? द लव ऑफ द पोएट फॉर द काउ इज. जो पोएट हैं जिन्होंने ये पोएम लिखी है, what kind of love he possess for that cow. उस काउ के प्रति उनका प्रेम कैसा है? ठीक है, ये भी हमसे पूछा गया है, तो हम ध्यान रखेंगे जब हम पोएम को पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 8, द काउ इज कंप्लीटली लॉयल एंड डोमेस्टिक. यहाँ पर अब हमें आइडिया लग गया कि कोई काउ के ऊपर ये पोएम होगा, तो वो किस तरह की काउ है इसके बारे में पूछा है. क्या वो लॉयल है, क्या वो डोमेस्टिक है? डोमेस्टिक मीन्स जिसको हम पालते हैं, पालतू जिसे बोलते हैं. व्हाट टेल्स यू अबाउट इट, आपको इसके बारे में क्या पता चलता है. फिर क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ड लोइंग डिनोट्स. लोइंग का मीनिंग पूछा है यहाँ पर हमसे. सो जब हम पोएम को पढ़ेंगे तो हम पता करेंगे कि किस सेंस में ये वर्ड यूज हुआ है पूरा लाइन और पैसेज को पढ़ के. एंड लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाट इज द राइम स्कीम इन ईच स्टैंजा. राइम स्कीम पूछी गई है. अभी राइम स्कीम क्या होती है? राइम स्कीम मीन्स जब भी आप कोई पोएम को पढ़ते हैं, ठीक है, उसके एंड में सिमिलर वर्ड्स आते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, ओके, जैसे द फ्रेंडली काउ all red and white, all red and white. Okay, I love with all my heart. I love with all my heart.
She gives, I'm writing the poem on the board, okay? She gives me cream with all her might. She gives me cream. क्या देती है वो मुझे? क्रीम देती है. With all her might. ठीक है? To eat with apple tart. To eat with apple tart. So these are the first 4 lines of the poem given. Okay. पहली 4 मैंने लाइंस लिखी हैं. So you have to see what is the rhyme scheme. Rhyme scheme means जब हम इसे वर्बली बोलेंगे तो एक राइम इफेक्ट आएगा. ठीक है, ऐसा लगेगा कि हम कोई गाना गा रहे हैं, एक जैसी साउंड्स प्रोड्यूस होंगी. फॉर एग्जाम्पल, द फ्रेंडली काउ ऑल रेड एंड वाइट. आई एम अंडरलाइनिंग द लास्ट वर्ड वाइट. टू आई लव विद ऑल माई हार्ट. अब यहाँ पर हार्ट थोड़ा सा अलग हो गया है. वाइट अलग साउंड आ रहा है, हार्ट का अलग साउंड है. शी गिव्स मी क्रीम विद ऑल हर माइट. अब यहाँ पर वापस से माइट, ये किससे मैच कर रहा है? वाइट से. वाइट माइट. ओके. टू ईट विद एप्पल टार्ट. टार्ट किससे मैच कर रहा है? हार्ट से. हार्ट टार्ट. ठीक है, तो ये थोड़ा सा राइम हो गया. ऐसा लग रहा है हम गा रहे हैं. ठीक है, सिमिलर सिमिलर सी साउंड्स आ रही हैं, तो इसको मैं डाल दूंगी ए. इसको मैंने ए दे दिया, इस वाली साउंड को वाइट. हार्ट एक अलग साउंड है, तो इसको मैंने बी डिनोट कर दिया, बी. अब माइट, माइट किसके जैसी साउंड है? वाइट के जैसी. तो वाइट को मैंने ए लिखा था, तो माइट को भी मैं ए डिनोट कर दूंगी. और टार्ट, टार्ट किसके जैसा मैच कर रहा है? हार्ट के जैसा. तो हार्ट को मैंने बी लिखा था, तो मैं टार्ट को भी बी लिख दूंगी. सो व्हाट इज अ राइम स्कीम? सो राइम स्कीम इज ए बी ए बी. ये हमारी राइम स्कीम हो गई है. ठीक है, कौन से पैसेज की? सिर्फ जो हमारी पोम का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट 4 लाइंस है, उनकी राइम स्कीम है ये. अब इन्होंने हमसे पूछा है व्हाट इज द राइम स्कीम इन ईच स्टैंजा. हर स्टैंजा में किस तरह की राइम स्कीम है. अगर यही राइम स्कीम सारे स्टैंजाज में है तो हमारा आंसर ए बी होगा. ठीक है, सो लेट्स रीड द पोम. छोटी सी पोम है, पहली 4 लाइंस मैंने लिख दी हैं, बाकी की 4 लाइंस भी बहुत इजी हैं. दैट आई विल स्पीक वर्बली. द फ्रेंडली काउ ऑल रेड एंड वाइट. अब यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया, हु इज शी रेफर्ड टू इन द पोएम. शी किसके लिए यूज हुआ था? सो द आंसर इज क्लियर, शी फ्रेंडली काउ के लिए यूज हुआ था. सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी, फ्रेंडली काउ. द फ्रेंडली काउ ऑल रेड एंड वाइट, आई लव विद ऑल माई हार्ट. एक फ्रेंडली काउ की बात हो रही है जो कि रेड है, वाइट है, थोड़ी स्पॉटी है. एंड आई लव विद ऑल माई हार्ट, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ. शी गिव्स मी क्रीम विद ऑल हर माइट, वो पूरे दिल से मुझे क्रीम देती है. द पोएट इज सेइंग टू ईट विद एप्पल टार्ट, ताकि मैं उसको एप्पल टार्ट के साथ में खा सकूं. ठीक है, क्रीम को और एप्पल टार्ट को साथ में मैं खा सकूं. तो ये बात कही गई है फर्स्ट स्टैंजा में. सेकेंड स्टैंजा में बोलते हैं शी वॉन्डर्स लोइंग हेयर एंड देयर. शी वॉन्डर्स, वॉन्डर्स मीन्स वो रोम करती है, भटकती है, वो यहाँ वहां. हेयर एंड देयर मीन्स यहाँ वहां. वो काउ जो है, फ्रेंडली काउ, वो भटकती रहती है. एंड येट शी कैन नॉट स्ट्रे, फिर भी वो नहीं खाती कुछ भी. और जैसे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जैसे जो रोड्स पे भटकते रहते हैं डॉग्स, काउस, उनकी तरह वो नहीं है. ठीक है, वो यहाँ वहां चलती है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रे डॉग्स की तरह, स्ट्रे काउस की तरह एमलेसली कहीं पे भी रोम नहीं करती है. एंड इन द प्लेजेंट ओपन एयर, द प्लेजेंट लाइट ऑफ डे, खुली हवा है. ठीक है, काफी प्लेजेंट, काफी अच्छी रोशनी है दिन की. एंड ब्लोन बाय ऑल द विंड्स दैट पास, एंड वेट विद ऑल द शावर्स, शी वॉक्स अमंग द मेडो ग्रास एंड ईट्स द मेडो फ्लावर्स. और बहुत तेज हवाएं चल रही है जिनको पास ऑन करते हुए वो आ रही है लौट के. एंड वेट विद ऑल द शावर्स, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से वो भीग रही है, गीली हो रही है. तो भी वो उन तेज हवाओं में, उन बौछारों के बीच में से मतलब उसके नीचे से गुजरती हुई आ रही है. और मेडो ग्रास पे वो वॉक कर रही है. मेडोज क्या होती हैं? ग्रीन फील्ड्स होती हैं. ठीक है, उन पे वो वॉक करती हुई लौट कर आ रही है. एंड ईट्स द मेडो फ्लावर्स, और रास्ते में जो भी फ्लावर्स आते हैं उनको वो खा लेती है. ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट पोएम. तो अब यहाँ पर हमारे पास जो कुछ क्वेश्चंस थे, हमें ऑलरेडी आंसर्स मिल चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 6, हु इज शी रेफर टू. शी किसके लिए यूज किया है पोएट ने? शी उन्होंने यूज किया है
फ्रेंडली काउ के लिए। ठीक है, तो पहला आंसर है अ काउ, फर्स्ट ऑप्शन इज अ काउ, सेकंड ऑप्शन इज द फ्रेंडली काउ, थर्ड ऑप्शन इज अ वुमन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज अ गर्ल। तो यहाँ पर कोई लड़की की बात नहीं हुई है, तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी अ वुमन, यहाँ पर कोई लेडी की बात नहीं हो रही है, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन बी द फ्रेंडली काउ, तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है द फ्रेंडली काउ, तो हमें आंसर मिल गया था। और ऑप्शन ए में लिखा है अ काउ। अब अ काउ और द फ्रेंडली काउ, तो यहाँ जो लिखा हुआ है हमारे पास क्लियरली गिवन है, वो ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है। हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करना होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। देन क्वेश्चन नंबर 7, द लव ऑफ द पोएट फॉर द काउ इज। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने जब पूरी पोएम पढ़ी थी, आई लव विद ऑल माई हार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, पोएट खुद कह रहे हैं कि मैं उसे दिल से पसंद करता हूँ, दिल से प्रेम करता हूँ, वो मेरी प्रिय है। ठीक है, तो द पोएट लव्स द काउ। ठीक है, अब ये लव कैसा है? ऑप्शन ए सेल्फिश, नो, सेल्फिश लव नहीं है पोएट का काउ के लिए। ऑप्शन बी इम्प्योर, क्या ये इम्प्योर? नो, उनका कोई इम्प्योर लव नहीं है, झूठा प्यार नहीं है वो। ऑप्शन सी फॉल्स, क्या उनका लव झूठा है? नो। ऑप्शन डी प्योर, इज द लव ऑफ द पोएट टुवर्ड्स द काउ ही ओन्स इज प्योर? यस, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पोएट का लव प्योर है एकदम अपनी काउ को लेकर। तो वो बहुत प्यार करते हैं अपनी काउ को, अपनी गाय को। क्वेश्चन नंबर 8, द काउ इज कंप्लीटली लॉयल एंड डोमेस्टिक, क्या वो काउ लॉयल है, मींस ईमानदार है अपने ओनर के प्रति, पोएट के प्रति? क्या वो डोमेस्टिक है, क्या वो एक पालतू है? ठीक है, पालतू गाय है वो, डोमेस्टिक मींस पालतू। व्हाट टेल्स यू अबाउट इट? आपने ये पूरी पोएम पढ़ी थी, इससे क्या पता चला था? तो हमने एक सेकेंड स्टैंजा में लिखा हुआ था, शी वॉन्डर्स लोइंग हियर एंड देयर, वो घूमती है इधर उधर, बट शी कैन नॉट स्ट्रे, लेकिन वो भटकती नहीं है एमलेसली। तो इससे ये साबित होता है कि वो डोमेस्टिक काउ है, मींस वो ऐसे ही नहीं घूम रही है सड़कों पर। ठीक है, वो किसी पर्पस के लिए गई है, ठीक है, चढ़ने के लिए गई है वो, और चढ़ के वापस आ जाएगी। तो वो एक पालतू गाय है, मींस शी इज अ डोमेस्टिक काउ एंड शी इज अ लॉयल काउ। क्यों? क्योंकि लॉयल क्यों है? लॉयल मींस वो वापस लौट के आ रही है अपने मालिक के पास, तो वो उसके प्रति बिल्कुल ईमानदार है। दैट इज द मीनिंग ऑफ लॉयल। सो अब ऑप्शंस देखते हैं पेज नंबर 126 पे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन ए इज दैट इट कैन नॉट स्ट्रे। यस, इट कैन नॉट स्ट्रे करेक्ट है, दिया हुआ है हमारे पास, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। ऑप्शन बी दैट इट ईट्स द मेडो फ्लावर्स, मेडो फ्लावर्स खाती है। ठीक है, दैट इट continues to low here and there, that it gives milk and cream. So the answer is it cannot stray, वो स्ट्रे नहीं करती, मीन्स भटकती नहीं रहती, रोम नहीं करती एमलेसली। इससे हमें पता चलता है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है इट कैन नॉट स्ट्रे, उससे हमें पता चलता है कि ये काउ हमारी डोमेस्टिक है और लॉयल काउ है। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ड लोअरिंग मीन्स, लोअरिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ हमने पढ़ा था शी वॉन्डर्स लोइंग हेयर एंड देयर। अब ये लोइंग का मतलब क्या होता है? लोइंग मीन्स ऑप्शन नंबर ए बेंडिंग डाउन ऑन नीज, नो, घुटनों के बल हम बैठ जाते हैं, ये होता है लोइंग का मतलब? नो। ऑप्शन नंबर बी द साउंड ऑफ द काउ, यस, एक्चुअली लोइंग का मतलब है जो गाय आवाज निकालती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सी द रेजिंग ऑफ द हेड बाय द काउ, नो, एंड डी क्राइंग, नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। सो आंसर्स आर ऑलरेडी गिवन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द राइम स्कीम? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए बी ए बी, ए बी ए बी इज द राइम स्कीम। सो क्लास 8 को तो क्लियर हो गया होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब अगर पैसेज की फॉर्म में आता है, ये तो आया था हमारे पास एक पोएम की फॉर्म में, लेकिन अगर ये पैसेज आता है अनसीन, तो आपको वही करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं एंड रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपका टाइम सेव हो जाएगा। उसके बाद आप उस पैसेज को रीड करेंगे। ठीक है, पैसेज को एक ही बार में अच्छे से पढ़ लेना है, ऐसा नहीं कि आपने हल्का रीड कर लिया उसके बाद आप, ठीक है, वापस से टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको रीड करने में। अच्छे से उसको पढ़ो, ठीक है, और जहां पर आपको लग रहा है कि हमसे इस क्वेश्चन के बारे में कुछ पूछ, इस चीज के बारे में कोई क्वेश्चन दिया था, तो वहां पर उसको अंडरलाइन कर लो उस लाइन को। ठीक है, कि भाई यहाँ से
कोई क्वेश्चन उठाया गया है, उसके बाद लास्ट में आप आंसर करना स्टार्ट करें, ठीक है, एंड आंसर शुड बी टू द पॉइंट। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है पैसेज में, कॉम्प्रिहेंशन में, तो आप एक लाइन का आंसर काफी है, मतलब उसको बहुत एलैबोरेट नहीं करना। 2 मार्क्स का पूछा है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, 3 मार्क्स का पूछा है, 5 मार्क्स का पूछा है तो अच्छे से एक्सप्लेन करो उसको, ठीक है। सो एंड वन मोर थिंग, यू कैन राइट आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज, डोंट ट्राई टू राइट एग्जैक्ट language that is written in the passage, okay, modify it in your own words, okay. So this is how you can score well. This was reading comprehension. It will also come in your test, which is very near. So some exercise questions are given and answer key is also given in your module. Please try these questions, and if you have any doubt, feel free to ask them. My phone number is 8696159555. Okay, so this was the reading comprehension part of class 8th. Fine. Now class 8th, one more thing I want to tell you. There was an ask yourself exercise of noun given on page number 6, sorry, given on page number 4, okay. So you can take the answers of that. This is for class 8th. Ask yourself exercise given on page number 4. Parliamentarian and leader are dash nouns. These are common gender nouns. पार्लियामेंटेरियन तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, लीडर भी कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है लीडर, फीमेल भी हो सकती है लीडर, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, वी सैट डाउन इन द शेड ऑफ अ डैश ऑफ ट्रीज। अब ट्रीज का कलेक्टिव नाउन क्या होता है? दो ऑप्शंस दे रखे हैं, क्लम्प एंड बंच। क्लम्प इज द राइट आंसर। वी सैट डाउन इन द शेड ऑफ अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 3, इरेजर कैन बी कंसिडर्ड एज अ डैश। दो ऑप्शंस है, कॉमन जेंडर या न्यूटर जेंडर। तो हमने कहा था लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स न्यूटर जेंडर में आते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज न्यूटर जेंडर। नन कैन बी कंसिडर्ड एज अ डैश। क्वेश्चन नंबर 4, नन का हमें जेंडर बताना है, तो नन फेमिनिन जेंडर होता है और इसका मैस्कुलिन जेंडर होता है मंक, MONK। क्वेश्चन नंबर 5, आवर पिकनिक वाज कंप्लीटली ruined बाय अ डैश ऑफ बीज। अब बीज का कलेक्टिव नाउन बताना है। वैसे तो बीज का कलेक्टिव नाउन अ नेस्ट ऑफ बीज भी हो सकता है, अ कॉलोनी ऑफ बीज भी हो सकता है, स्वॉर्म ऑफ बीज भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कॉलोनी को टिक कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको बोला था एक से ज्यादा कलेक्टिव नाउन भी हो सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। सो just remember the article. So this completes your syllabus of first online test. So I hope this is clear to all of you. Thank you. We'll meet in the next lecture.